that is we are indulging that. The only and only allegation against me is that the bitcoins which were received by this company and this person, these accused persons, which is a digitalized cryptocurrency, and still the trading of this digitalized cryptocurrency is valid in India, not banned in India, though it is banned in some 7-8 countries. Yes. These bitcoins were transferred to me, Yes. and in turn, these accused persons received Indian currency in rupee from me. This is the only and only allegation against me. Yes. The point is, मैं थोड़ा सा पार्ट भी पढ़ देता हूँ उनके मेमोरेंडम का, जिस पार्ट से मेरे को एक्यूज बनाया है इन्होंने. Yes. I am reading the memorandum of Karan. Yes. And this memorandum is subsequent वाला. First memorandum में उसने कुछ नहीं बताया और subsequent memorandum है ये. And very interesting कि the raid was conducted on 5/11/2020 and this memorandum was recorded 28/6/2022. Yes. अब now the relevant part in respect of me, my lord. Yes. वर्ष 2020 में Yes. मेरे कॉल सेंटर पर काम करने वाले लड़के जयराम पटेल द्वारा मुझे बिटकॉइन के बारे में बताया था. ये वो करण गिरा है जो मैंने उपयोग किया है, जिसमें मेरे द्वारा ट्रस्ट वॉलेट का उपयोग किया था, जो गूगल ऐप के माध्यम से डाउनलोड किया गया था, जिसमें बारकोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जाता था. उक्त ऐप पर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था, न ही कोई मोबाइल नंबर या खाता संख्या से लिंक किया जाता. तो बिटकॉइन में भी ट्रेडेड. बिटकॉइन इज अ लेजर which is available on internet. No one knows who has started this cryptocurrency Bitcoin. Anyone by using several apps, including the best is Trust Wallet, anyone can open this account. After opening that account, anyone can open his own account in that ledger and purchase the Bitcoin, transfer the Bitcoin, sell the Bitcoin, and convert it into any currency of the world. So what he said कि मुझे मेरे सेंटर वर्ष 2020 में मेरे कॉल सेंटर पर काम करने वाले लड़के जयराम पटेल के द्वारा मुझे बिटकॉइन के बारे में बताया था, जो मैंने उपयोग किया है, जिसपे मेरे द्वारा ट्रस्ट वॉलेट का उपयोग किया गया था, जो गूगल ऐप के माध्यम से डाउनलोड किया था, जिसमें बारकोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जाता था. उक्त ऐप पर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था, न ही कोई मोबाइल नंबर खाता संख्या से लिख दिया है. इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है कि ये किसका अकाउंट है और क्या है. ये इसमें ओनली द ईमेल आईडी इज मैंडेटरी एंड दैट कैन बी ट्रेडेड बाय ईमेल आईडी, एक्सेप्ट दैट देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ एन बिटकॉइन कि आई एम हु इज होल्डिंग दैट बिटकॉइन एंड हु इज द ओनर ऑफ दैट बिटकॉइन एंड अंडर हुज अकाउंट दिस इज मेंशन, नॉट देयर वंस. इससे उक्त बिटकॉइन में अमेरिकी नागरिकों के द्वारा बारकोड के माध्यम से बिटकॉइन डलवाए जाते थे. जो रवि रामी प्रेजेंट एप्लीकेंट, तुषार ठक्कर वो देव त्रिवेदी निवासी अहमदाबाद को उनके बिटकॉइन ऐप पर बारकोड की कोड के माध्यम से ट्रांसफर कर देता था, जिसके बदले वो नकद रखा. एंड इट इज स्टिल वैलिड बिजनेस. Still in India it is a valid business. If someone is transferring the bitcoin to me and I am giving the money to him, there was no occasion for me to ask if from where you have received this bitcoin, and even no one can ask and no one can identify कि ये बिटकॉइन एक्स से आए कि वाई से आए हैं कि जेड से आए हैं. Only simply I have transferred this bitcoin in your account, you will have to pay me. So this is the allegation is that only that bitcoin was transferred to my account, to your account, and I paid and you had Indian currency. Yes, except that there is no allegation against me, no involvement in this crime, my lord. Nothing is there, and on the basis of this statement I have been implicated in this case. इसके अलावा किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है. और कोई थोड़ी बहुत कॉल डिटेल निकाली होगी इन्होंने, तो मैं भी, मेरा कस्टमर है, मेरे कस्टमर से मेरी कोई कॉल पे बातचीत होती होगी. He is my customer. I am not denying. I am a forex trader, and this is not illegal, and this is not an offense. What is the word for that trading? Forex trading. Forex. 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 Forex trading. Forex. Forex trading.
means the trading of the conversion, trading of the Yes, some various license. currencies. Some license is No, required. no, nothing is required in forest trading. It's a legalized It's a business. legalized business, and no, and the sale and purchase of the Bitcoin on through internet, because this Bitcoin is digitalized cryptocurrency. Yes. और उसके लिए कोई है ही नहीं, कोई रूल ही नहीं. Even no one knows कि who has initiated this Bitcoin ledger. This is traded by the ledger, through ledger. Bitcoin is a big application, और उस पर आपका अपना अकाउंट बना लीजिए, आपके अकाउंट में आप परचेस कर लीजिए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, आपके अकाउंट में सेल कर दीजिए. क्या कुछ है ही नहीं, तो फिर देयर इज नो कनेक्शन. इट वॉज एन ऑर्गेनाइज क्राइम मेलोड. जब हमको ये लीड मिली मेलोड FBI से किसी इस तरीके का कोई ऑफेंस मेलोड अमेरिकन सिटीजन्स के साथ हो रहा है, तो हमने रेड करी इनके सेंटर पर. वहां से हमने कुछ एक एक्यूज मिनट को इंटरप्ट कर दूं प्लीज. इनके मत बोलिए, मेरे सेंटर हो तो कोई फिर होता था. ये इनके उनके इन्हों से सब गड़बड़ जाता है. सर, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम है सर, तो हर एक्यूज का सिमिलर रोल है मेलोड. इसमें कुछ ना कुछ रोल है, और सबकी कंजॉइंटली मेलोड लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेलोड, क्रिमिनलिटी है. ये मेरा कहना है मेलोड. तो जब हमको लीड मिली मेलोड, तो हमने उस सेंटर पर छापा मारा, और उसके बाद वहां से कुछ एक्यूज को अरेस्ट किया, जिसमें कुछ कॉल सेंटर पर कॉल करने वाले लोग थे मेलोड, और कुछ और लोग थे मेलोड. उनका नाम था जोशी फ्रांसिस मेलोड, और जयराज पटेल और मेहुल पाटिल. ये लोग मेलोड यहाँ हमको शुरू में ट्रेस हुए. उसके बाद जब इनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया मेलोड हमने, तो इसमें दो नाम और आए मेलोड, करण और हर्ष के मेलोड. करण और हर्ष का मेलोड जब नाम आया, तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन और आगे प्रोग्रेस किया मेलोड, तो करण और हर्ष को मेलोड इस पूरे ऑफेंस का मेलोड मेन जो कल्प्रिट है, वो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया. जब करण से इंट्रोगेशन हुआ मेलोड, ये जो पूरा क्राइम था मेलोड 3 मॉड्यूल में होता था मेलोड. इसका जो मॉड्यूल था वो इस तरह से था मेलोड, कि पहला जो मॉड्यूल था इसके कॉलर सेंटर मेलोड, जो फर्स्ट स्टेज होती थी इस क्राइम की मेलोड. कॉलर सेंटर से ये कॉल करते थे अमेरिकन सिटीजन को मेलोड. उनको थ्रेट देते थे कि आपका सोशल ID नंबर होता है मेलोड, वहां पर उसको ब्लॉक करने का थ्रेट देते थे. जब वो अमेरिकन सिटीजन मेलोड उससे इनके थ्रेट से मेलोड कहीं डर जाता था, तो वो इनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करता था. जब वो बार्गेनिंग वाला मेलोड स्टेज आती थी, तो वो डायलर जो फर्स्ट स्टेज वाला जो ऑपरेटर है मेलोड, वो उसको सेकंड स्टेज पे मेलोड उस पूरे केस को ट्रांसफर कर देता था. उसको कहते हैं मेलोड क्लोजर और मैनेजर मेलोड. इस क्लोजर और मैनेजर के मेलोड जो की पर्सन थे मेलोड, वो थे मेलोड हर्ष भावसार और करण भट्ट. हर्ष भावसार और करण भट्ट में. यस. हर्ष भावसार और करण भट्ट मेलोड उन अमेरिकन सिटीजन से मेलोड इस पूरे इशू के लिए बार्गेनिंग करते थे मेलोड. जब इनकी बार्गेनिंग हो जाती थी और कुछ अमाउंट सेटल हो जाता था, कुछ अमाउंट डिसाइड हो जाता था मेलोड, तो अब क्योंकि वो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं मेलोड, और वो अमेरिकन करेंसी में ही अमाउंट दे सकते हैं, और अमेरिकन करेंसी में आप अमाउंट लेने के लिए तैयार नहीं होते थे मेलोड, तो उसका कुछ दूसरा मेलोड सब्स्टिट्यूट आप लोग उसको प्रोवाइड कराते थे. वो जो सब्स्टिट्यूट होता था मेलोड, वो होता था गिफ्ट कार्ड. जैसा आप बता रहे कि ये बिटकॉइन का मामला है, तो ये सिर्फ बिटकॉइन का मामला नहीं है मेलोड. तो वो होते थे मेलोड जो अमेरिका में जो गिफ्ट कार्ड, आईट्यून्स, मेसी, गूगल, इस तरीके के मेलोड कुछ पेमेंट्स के मोड होते हैं, कुछ वाउचर्स होते हैं मेलोड, जिनके कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं मेलोड. उन नंबर्स के आधार पर उन कार्ड्स को मेलोड रिडीम किया जा सकता है. वो उनका मनी में वैल्यू होता है मेलोड डॉलर्स में. तो जब ये इस तरीके के मेलोड जो कार्ड अमेरिकन सिटीजन्स मेलोड इनको प्रोवाइड कराते थे, तो ये जो कार्ड से मेलोड हर्ष भावसार और करण भट्ट के पास आते थे. अब इसकी जो थर्ड स्टेज है मेलोड, वो होती थी मनी लॉन्ड्रिंग की मेलोड. जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट है, वो प्रेजेंट एप्लीकेंट का रोल वहां से स्टार्ट होता था मेलोड. उस मनी लॉन्ड्रिंग के पार्ट में मेलोड ये करते थे मेलोड, कि वो जो गिफ्ट वाउचर्स है, सिर्फ बिटकॉइन नहीं मेलोड, जो दूसरे मोड के भी जो पेमेंट होते थे, उन पेमेंट्स को अमेरिका की करेंसी से मेलोड इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते थे, और उस पर अपना 30 to 40% चार्ज करते थे, मतलब कमीशन लेते थे, और बाकी अमाउंट करण भट्ट को, जो इस पूरे क्राइम का मेन कल्प्रिट है, उसको देते थे मेलोड. ये प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ एलिगेशन है मेलोड. और जहां तक प्रेजेंट एप्लीकेंट इज सीकिंग मेलोड एंटीसिपेटरी बेल मेलोड, इट्स ए इंटरनेशनल क्राइम मेलोड. और इसमें हमने जो यूएस सिटीजन्स के भी मेलोड, यूएस असेंबली और FBI के कोऑर्डिनेशन से मेलोड उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेलोड उनके अमेरिकन सिटीजन्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए मेलोड.
उन सब स्टेटमेंट से भी मतलब इस पूरा क्राइम का खुलासा हुआ है मतलब। एंड द प्रेजेंट एप्लीकेंट इज सीकिंग मतलब एंटिसिपेटरी बेल मतलब। वी आर रिक्वायर्ड मतलब देयर कस्टोडियल इंट्रोगेशन मतलब, क्योंकि अभी जो ये थर्ड वाली स्टेज है मतलब उस तक हम पहुंच ही नहीं पाए मतलब। ये 2 स्टेजेस तो हमने क्रैक कर दिए मतलब, लेकिन थर्ड स्टेज के जो भी ये की पर्सन थे मतलब, First is the calling, डायलर और कॉलर मतलब। calling, यस मैम। जो सेकंड स्टेज है मतलब वो क्लोजर मैनेजर में, closer, क्लोजर एंड मैनेजर में। क्लोजर और मैनेजर की जो की पर्सन है मतलब वो है करण भट्ट और हर्ष भावसार में। Karan करण, and यस मैम। और थर्ड स्टेज होती है मनी Karan लॉन्ड्रिंग and की। Harsh. यस मैम। Hmm. और थर्ड स्टेज होती है मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की मतलब, वहां से प्रेजेंट एप्लीकेंट का रोल स्टार्ट होता है मतलब। और क्योंकि मतलब ये ऑर्गेनाइज क्राइम है मतलब, तो इसमें किसी भी एक्यूज का रोल इंडिविजुअल नहीं किया जा सकता मतलब, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट उस पूरे ऑफेंस में था मतलब। ऐसा हमारा ये केस है मतलब। इसके अलावा मतलब प्रेजेंट एप्लीकेंट के, क्योंकि प्रेजेंट एप्लीकेंट इज एब्सकॉन्डिंग मतलब, और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन मतलब तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आप कस्टडी में आएंगे हमारे। उसके बगैर मतलब इसको पूरा, इस पूरी लिंक को तोड़ा जाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा मतलब। लेकिन प्राइमा फेसाई जो हमने इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया है मतलब, उसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट की जो एक करण है मतलब, जो मेन कल्प्रिट है इस ऑफेंस का, उसके साथ मतलब कॉल डिटेल्स हैं। ये कॉल डिटेल्स हमने कलेक्ट किए 16/12/2019 से 6/11/2020 मतलब, ये जो ये क्राइम का रिलेटेड पीरियड है 16/12, 16/12/2019 से 6/11/2020 के बीच की है मैलॉर्ड। 6/11/2020. यस मैलॉर्ड। ये इस पीरियड में मैलॉर्ड इनकी 175 बार इनकी इनसे करण भट्ट से बात हुई है मैलॉर्ड। और प्रेजेंट एप्लीकेंट जैसा कह रहे हैं कि बहुत रेप्यूटेटेड बिजनेसमैन है और करेंसी वगैरह का काम करते हैं, तो इनके मतलब 3 ऑफेंसेस है अहमदाबाद। प्रेजेंट एप्लीकेंट इज रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मैलॉर्ड। इनके 3 ऑफेंसेस है मैलॉर्ड अहमदाबाद में, गुजरात में मैलॉर्ड। वो 3 ऑफेंसेस की मतलब डिटेल है। एक ऑफेंस है इनके खिलाफ मैलॉर्ड 406, 419, 420 और 120 बी का सेम नेचर का ऑफेंस है, और 66 सी एंड 66 डी ऑफ आईटी एक्ट में। जो सेकंड ऑफेंस है मैलॉर्ड इनका है 406, 419, 420, 120 बी एंड 66 सी एंड 66 डी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। ये भी सेम इसी तरह के नेचर का ऑफेंस है मैलॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है. क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है मैलॉर्ड। जब हमने मैलॉर्ड, हमारी टीम पिछले 2 साल से इनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है मैलॉर्ड। इनके बंगले पर हम अहमदाबाद पूरी टीम वहां पर गई मैलॉर्ड, लेकिन ये इतने बाहुबली लोग हैं मैलॉर्ड कि वहां मैलॉर्ड टीम इनके घर के प्रीमाइसेस में इंटर नहीं कर पाई मैलॉर्ड। इस तरीके का इनका खौफ है मैलॉर्ड वहां पर। और प्रेजेंट एप्लीकेंट का कस्टोडियल इंट्रोगेशन मैलॉर्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है मैलॉर्ड। एंड सो फार एज मैलॉर्ड अदर एक्यूज पर्संस आर कंसर्न मैलॉर्ड, करण भावसार, हर्ष भावसार और मेहुल पाटिल मैलॉर्ड। इन 3 एक्यूज की बेल मैलॉर्ड दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज डिसमिस्ड मैलॉर्ड देयर रेगुलर बेल मैलॉर्ड ऑन मेरिट्स मैलॉर्ड। Thereafter, my lord, one of the accused, Mehul Patil, has approached before the Honorable Supreme Court, my lord, and the Honorable Supreme Court has also rejected the bail of Mr. Mehul Patil, my lord. और प्रेजेंट जो करण भावसार की बेल जो my lord ने डिसमिस की है my lord, उससे प्रेजेंट एप्लीकेंट की डायरेक्ट लिंक है my lord। उसका हमारे पास एविडेंस भी है। करण भट्ट की. Yes, लास्ट टाइम पे जो आपने ऑर्डर दिया. yes ma'am, ठीक हो गया आपका। yes। 2 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, हमारे घर में घुस भी पा रहे हैं। पहली बार मेरा नाम 28/6/2022 को आता है, उसके पहले कोई बता दे इसकी पूरी डायरी में कि मेरा नाम कहीं किसी पिक्चर में है क्या, कैसे 2 साल से कर। Malad, the allegation only and only in respect of Bitcoin. It has been falsely stated before this honorable court. It's very, very wrong practice on behalf of the prosecution. इनको करके सारे एक्यूज का, सारे जो एप्लीकेंट है उसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि कोर्ट को ये लगे कि ये सारा के सारा मेन ही इज इन्वॉल्व। My lord, in respect of the, मैं उसी मेमो को पढ़ता हूँ, मैंने मेमो पढ़कर सुनाया है, इसीलिए उसी में कहते हैं वाउचर, जो गिफ्ट कार्ड और वाउचर जिन पे नंबर होता है, बिटकॉइन इज नॉट हैविंग एनी आइडेंटिटी। वी वर नॉट अवेयर ऑफ, वी आर फॉरेक्स ट्रेडर। और ये बिटकॉइन की क्या आइडेंटिटी, बिटकॉइन की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। गिफ्ट कार्ड और वाउचर अपने स्तर